ওম শান্তি। আজকে বাবার 17/8/2020 মুরলি। আজকে মুরলিতে বাবা বিশেষ বলছেন যে সারা দুনিয়া এখন কুসঙ্গ, তো এই মায়াবী দুনিয়ার কুসঙ্গ থেকে তোমরা নিজেকে বাঁচাও। আর এক বাবারই সঙ্গ হচ্ছে আসল সৎসঙ্গ, তো সবসময় সৎসঙ্গে থাকো, অর্থাৎ বাবার সঙ্গে থাকো। তারপরে বাবা বলছেন যে সবাইকে জানিয়ে দাও যে এখন এই মহাভারী মহাভারত বিনাশের পরে স্বর্গের গেট খুলবে, সত্যযুগের গেট খুলবে। তো স্বয়ং ভগবান এসেছেন স্বর্গের গেটের উদ্বোধন করার জন্যে। তারপরে বাবা বলছেন যে আজকালকার সাধু সন্ন্যাসীরা তারা নিজের উপরে শ্রী শ্রী টাইটেল নিয়ে নিচ্ছে, অথচ শ্রী শ্রী টাইটেল নেওয়ার অধিকারী তো একমাত্র শিব বাবা, কিন্তু ওরা নিজেরা যেহেতু পবিত্র থাকে তো শ্রী শ্রী টাইটেল নিয়ে নিচ্ছে। বাবা বলছে ভক্তি মার্গের কোনো বেদ শাস্ত্র গীতা দ্বারা কারো কল্যাণ হয় না, এই বসুন্ধরা ধন্যধান্যে সম্পন্ন হবে না, কেন আসল জ্ঞান তো নেই। তো বাবা জ্ঞান সাগর যখন আসল জ্ঞান বৃষ্টি করছে তখন এই পুরো বসুন্ধরা বা পুরো পৃথিবী নতুন করে শস্য শ্যামল অর্থাৎ সুখ শান্তি ধন সম্পদে ভরপুর হচ্ছে। এখন তো সারা দুনিয়ায় শুকিয়ে গেছে। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনি। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सबज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। বাবা বলছেন জ্ঞান সাগর বাবা এসেছেন জ্ঞান বর্ষা করে এই ধরিত্রীকে সবুজ বানাতে। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে, তাই নিজের চলনকে দেবী সম্প্রদায়ের মতন বানাতে হবে। আজকের প্রশ্ন, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? যারা সর্বোত্তম কুলের বাচ্চা তাদের মুখ্য কর্তব্য কি হবে? আমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল সবথেকে শ্রেষ্ঠ কুল, তো যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের আত্মা হবে তাদের মুখ্য কর্তব্য কি হবে? তো বাবা উত্তরে বলছেন सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाबा बोलছেন सब समय উঁচু রুহানি সেবা করা এবং খাস ভারতবর্ষকে আর বাকি সারা বিশ্বকে পাবন করা, বাবার শ্রীমতে চলা এবং বাবার মদতগার বাদশা হওয়া, এটাই সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ আত্মার মুখ্য কর্তব্য। আজকের মুরলির গান হচ্ছে जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। বলছে যারা শিব বাবা যে আমাদের সাজন, তার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্যেই বাবা সাজন জ্ঞানের বর্ষাত মানে জ্ঞানের বৃষ্টি করছেন। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। বাবা বলছেন যে জ্ঞানের সাগর ব্রহ্মা বাবাকে বলা যাবে না, জ্ঞানের সাগর হচ্ছেন আত্মার যে পিতা পরমাত্মা শিব বাবা, রুহানি বাবা, তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর। तो एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर।
जैसे भगवान सबका एक है वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं ना। बाबा বলছেন যেমন সবার জন্য ভগবান এক, তো বাবার দেওয়া জ্ঞানও সকলের জন্য এক। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। बाबा বলছেন ভক্তি মার্গে এত মানুষ বেদ শাস্ত্র পড়ছে, গীতা পড়ছে, কিন্তু এটা আসলে জ্ঞান বর্ষা নেই। এই জন্যে ভারতবর্ষ এখন শুকিয়ে গেছে, একদম কাঙ্গাল হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন বাবা এসে এখন আসল জ্ঞানের বৃষ্টি করছেন, তো সেই জ্ঞান বৃষ্টি দ্বারা ভারত আবার সুখ সম্পদাতে ভরপুর হয়ে যাবে। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है ना। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন কি যেমন বৃষ্টি না পড়লে কি হয়, একদম মাটি শুকিয়ে যায়, ঠিক সেরকম বাবার সত্য জ্ঞানের বৃষ্টি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই ধরাধাম শুকিয়ে যাচ্ছে। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। बाबा বলছেন সত্য যুগে কখনো মাটি শুকবে না, সব সময় শস্য শ্যামলা माटी থাকবে। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। बाबा বলছেন যে আমি তো সকলের কল্যাণকারী পিতা, কিন্তু আমাকে আর আমার কর্তব্যকে ঠিকমতো না জানার জন্যেই মানুষ এত পতিত দুঃখী এবং অনাথ হয়ে গেছে। आपस में लड़ते रहते हैं, घर में बाप नहीं होता है तो बच्चे लड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं। যেমন কোনো বাড়িতে গার্জিয়ান যদি না হয় তাহলে সে বাড়িতে বাচ্চারা লড়াই ঝগড়া করে, তখন পাশের প্রতিবেশীরা শুনে কি বলে যে তোমার বাবা কি বাড়িতে নেই। তো সবাই জানে যে গার্জিয়ান ছাড়া সন্তানরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে। তো এখন সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতি ধর্ম নিয়ে এত লড়াই ঝগড়া, তার মানেই হচ্ছে যে আসল যে গার্জিয়ান, আসল যে পিতা, তার পরিচয় মানুষ জানে না। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं है, न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है, उनका नाम शिव है। बाबा বলছে আমার একটাই नाम शिव, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। বলছে আমার এই নাম কখনো পরিবর্তন হবে না, যেমন আমি সদা সত্য, ঠিক সেরকম আমার নামটাও সদা शिव। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। বলছে ভারতবর্ষে একটা রীতি আছে, বিয়ের সময় যে কন্যা তার নাম পরিবর্তন করে দেয়, কিন্তু বাইরে বিদেশে এসব সংস্কার নেই। तो बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख घनेरे। तो भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। বলছে এটা না যে ভক্তি মার্গে আমি সবসময় তোমাদের উপরে কৃপা করি, কারণ যেহেতু সেটা সত্য জ্ঞান নেই, এই জন্যে কৃপা হয় না। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है,
जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। बाबा बोलছেন যেমন সাধু সন্ন্যাসীদের নাম পরিবর্তন হয়ে যায়, তাদের লৌকিক নাম থেকে তারা অন্য নাম পায়, তো এরকম ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও বাবার নাম চেঞ্জ করতে পারে, কিন্তু বাবা বলছে ব্রাহ্মণদের কোনো ভরসা নেই। আজকে একদম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিজেকে দেখাচ্ছে, আবার কখন মায়া তাদেরকে থাপ্পড় মারবে আর কখন সে শূদ্রকুলে আবার চলে যাবে, এই জন্য বাবা বলছে নাম আর চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो, यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। বাবা বলছেন যে তুমি চলতে ফিরতে বাবার সঙ্গে যোগে যখন বসে আছো তো ভারতবর্ষের খাস এবং বিশ্বের তুমি जनरल सेवा করছো। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तुम हो बाप के मददगार, बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है, तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। বলছেন যে তোমরাই এটা জোর গলায় বলতে পারো যে আমরা কল্প কল্প ভারতবর্ষকে পবিত্র বানিয়ে এই ভারতবর্ষের উপরে আমরা রাজত্ব করছি। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं, विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे, ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। বাবা বলছেন যখন তোমরা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছো তার মানে তোমাদের সামনে ব্রহ্মা আছে, তো ব্রহ্মা না হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা না হলে ব্রাহ্মণ কোথায় থেকে এলো, তো তোমরা এখন ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ब्राह्मण संतान। यह युक्ति है, औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। বাবা বলছেন যেটা বাবার আজ্ঞা, বাবার এটা আদেশ যে 63 জন্ম তোমরা পতিত ছিলে, এইবার সত্যযুগে পাবন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে পবিত্র হও। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। বাবা বলছেন যে আমি এই মুখ দ্বারাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। मेरा जन्म दिव्य है। ব্রহ্মা বাবার ভৃকুটিতে শিব বাবার অবতরণ, এটাই হচ্ছে বাবার দিব্য জন্ম। বাবা আমাদের মতন জন্ম নেন না, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার ভৃকুটিতে এসে বসা এটাই হচ্ছে বাবার দিব্য জন্ম। सतयुग में है देवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। বাবা বলছেন এখনকার যারা একটু সাধনার পথে আছে বা যারা নিজেকে ভাবে যে আমরা ধর্মের পথে আছি, ধর্মের প্রচার করছি, তখন তারা নিজেকে বড় বড় টাইটেল দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছে কোনো মানুষই এখন নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না।
साधु अपने को श्री श्री कह देते हैं। बच्चे साधुरा निजे के श्री श्री टाइटल दिए दीछे और मनुष्यों को श्री कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसलिए श्री श्री कहते हैं तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। बाबा साधु सन्यासीरा विकारे जाच्छे ना, किंतु विकारी दुनियार मध्य तो आछे। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे, होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत पलिती कपड़ धोए, तो गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अच्छे गुरु नानक क्यों उनार ग्रंथे बोले जे भगवान से নোংরা কাপড় কাচছেন। তো বাবা এখন এসে আমাদের এ দেহ এবং আত্মা যেটা দুটোই পতিত হয়ে গেছে, বাবা এসে এখন আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, वो कोई धर्म विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। बाबा बोलছেন যারা ধর্ম পিতারা আসছেন তারা নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করছেন এবং তারা কোনো নিজের ধর্মকে বিনাশ করছেন না। তাদের ধর্মের লোকেদের সংখ্যা তো বেড়েই যাচ্ছে। এবার বাবা এসে টোটাল বৃদ্ধিকে বন্ধ করছেন। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाबा बोलছে समस्त धर्मेर विनाश और एक धर्मेर स्थापना एटा हबे। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की नोंद है। बाबा बोलছেন যে এখন ড্রামাতে বিধানই এটা লেখা আছে যে সব আত্মাকেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এখন এই বিধানকে কেউ টলাতে পারবে না। তো সবারই এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা এসে গেছে। तो इस विनाश को कोई टाल ही नहीं सकते। बाबा एकदम बोलছেন যে এই বিনাশকে কেউ টলাতে পারবে না। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। বলছে এত মত মতান্তর, এত ধর্মের ভেদাভেদ, তো যতক্ষণ বিনাশ না হবে বিশ্বে শান্তি আসবে না। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। बाबा বলছেন যে এই মহাভারী महाविनाशेर द्वाराई स्वर्गेर गेट खुलबे। तो यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो। बाबा बोलছে যদি তুমি প্রদর্শনীর কোথাও উদ্বোধন করাচ্ছো তাহলে তাদের কাছে এটা লিখে দাও। बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ, बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। बाबा বলছে আমি সত্যযুগের উদ্বোধন করতে এসেছি, তো কার সাহায্য নেব? আমার নিজের বাচ্চাদেরই সাহায্য নেব, আর কারো দরকার নেই। तो इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं ना, घर घर में तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु
अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। বাবা বলছেন যে কাউকে তুমি এটা বলো না যে আমরা ভক্তিকে মানি না, শাস্ত্রকে মানি না। বলো এই কোর্সটা তো আমরা কমপ্লিট করে দিয়েছি। যেমন মাধ্যমিক পুরো করলে তারপরে উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা করতে হয়, তো সেরকম আমরা ভক্তি মার্গের বেদ শাস্ত্রের সমস্ত পড়া কমপ্লিট করে নিয়েছি। এবার আমরা জ্ঞান মার্গে এসেছি, ভক্তি মার্গে রাত পূর্ণ হলো। तो ज्ञान से दिन शुरू होता है, तो बाप आए हैं सद्गति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे, बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। बाबा बोलছেন যে একটা গান আছে যে সতগুরু তারে আর কুসঙ্গ বোরে। তো বাবা সতগুরু এখন আমাদের নৌকাকে পার লাগাচ্ছেন। আর এতদিন আমরা মায়ার কুসঙ্গে ছিলাম, তো একদম ভবসাগরে ডুবে গেছিলাম। তো এখন বাবা এসে একদম সত্যি যে সত্যযুগ যে सचखंड তার স্থাপনা বাবা করছেন। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण, अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। बाबा छे যখন বাবা ভগবান স্বয়ं সদ্গতি দাতা এসে আমাদেরকে সদ্গতি করছেন, তাহলে আমরা কেন ভক্তি করব। भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। বাবা বলছেন যে সতগুরু তো একজনই যিনি অকাল মূরত, তাও অনেকেরা নিজের উপরে সদ্গুরুর টাইটেল নিয়ে নিচ্ছে। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते मन मना भव। तो बाबा बोलছেন सब धर्मेर लोकेरा এটা বিশ্বাস করেন যে ভগবান হচ্ছেন অকাল মূরত, যাকে কখনো কাল খায় না, কিন্তু মানুষকে তো কাল খেয়ে নিচ্ছে। মানে মানুষের জীবনে তো মৃত্যু আছেই। तो बाप समझाते हैं मन मना भव, उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो जप साहेब को। बाबा বলছেন শিখ ধর্মের একটা শব্দ আছে জপ সাহেব তো সুখ অনেক পাবে। তো বাবা বলছেন সাহেব তো একমাত্র বাবা, যাকে আমরা সব সময় যদি স্মরণ করি তাহলে অনহদ সুখ আমরা পাবো। साहेब तो एक है, गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा दिया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है, यह है अजपा जाप। बाबा बोलছেন তোমাকে ভক্তি মার্গের মতন কোনো মন্ত্র বা মালা জপ করার দরকার নেই, তোমাকে তো বাবাকে याद করতে হবে। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है, तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है।
सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। বাবা বলছেন যে 84 জন্মের সিঁড়িতে এখন আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি। 84 জন্মের সিঁড়ি নামলাম, এবার আমাদের উপরে যাওয়ার সময়। तो मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी है ना। বলছেন কলিযুগের শেষে সবাই মানুষ কি বলছেন যে আমি निर्गुण, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं। বলছেন একটা সংস্থা আছে নির্গুণ সংস্থা, যেখানে বাচ্চাদের এটা সংস্থা। তো বাবা বলছে যে বালকদের মধ্যে যদি কোনো গুণ নেই, নির্গুণ, তাহলে বালকের যে পিতা তার মধ্যেও কোনো গুণ থাকবে না। सब में अवगुण है, गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। বাবা বলছেন যে তোমরা আধা কল্প বিষয় সাগরে ডুবেছিলে, এবার আমি জ্ঞান সাগর বাবা এসেছি, আর এখন সত্যযুগে আমি তোমাকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছি। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। বাবা নিজের ভেদ খুলছেন যে ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে আমি এসে ব্রহ্মা বাবার আত্মার একদম পাশে বসি আমি, আর আমি পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি যখন ইচ্ছা এনার ভ্রিকুটিতে এসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছি, দৃষ্টি দিচ্ছি, আর যখন ইচ্ছা আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। যেমন ব্রহ্মা বাবার আত্মা তো ওই শরীরে বাঁধা আছে, কিন্তু আমি বাঁধা নাই। আমি যখন ইচ্ছা আসি, যখন ইচ্ছা আমি চলে যাই। तुम पितरों को खिलाते हो ना, तो आत्मा को खिलाते हो। शरीर तो भस्म हो जाता है। যখন কোনো পিতৃ আত্মাকে আমরা যখন খাওয়াই ব্রাহ্মণের মাধ্যমে, তো বাবা বলছে যে যাকে তোমরা খাওয়াচ্ছ তার শরীর তো শ্মশান ঘাটে পড়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আত্মাকেই তো ডাকা হয়। उनको देख भी नहीं सकते, समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। বাবা বলছেন যে আগে সব হতো যে কোনো বিশেষ আত্মাকে ডাকা হতো, কোনো ব্রাহ্মণের শরীরে জিজ্ঞেস করা হতো যে তুমি কোথায় জন্ম নিয়েছো, কেমন আছো। তখন সে আত্মা শুধু এটা বলতো যে হ্যাঁ আমি খুব সুখী আছি, কিন্তু কোথায় জন্ম নিয়েছি এটা বলতো না। যদি অ্যাড্রেস দিয়ে দিত তাহলে তো সবাই চলে যাবে। তো এইভাবে আগে এরকম পিতৃ আত্মারা আসতো। তো বাবা বলছেন কোনো কোনো আত্মা আসে আর কোনো কোনো আত্মা আসেও না। তো এখন এইসব পিতৃ আত্মাদেরকে ডাকা এখন হয় না, আগে হতো। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। বলছে যদি রাজা হতে চাও তাহলে ঈশ্বরীয় পড়াতে লেগে যাও, দুনিয়া তো খুবই খারাপ, দুনিয়ার কুসঙ্গে যেও না। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना,
यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं ना और कहीं ले चलो। अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है। बाबा बोले दुनिया खूब ही खराब, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। बाबा बोले लक्ष लक्ष कोटि कोटि टाकार एखाने गोलमाल होच्छे। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाबा এখন যে জ্ঞান দিচ্ছেন এটাই হচ্ছে আসল সাচ্চা गीता, तारपरे ज्ञान लुप्त हो जावे। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। बोलছে सत्ययुगे যেই তোমাদের নতুন জন্ম হবে তখন এই জ্ঞান পূরণ হয়ে যাবে, আর জ্ঞান থাকবে না। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया। বা বলছেন যে সূক্ষ্ম বতনে যদি শিব পার্বতীকে দেখানো হয় তাহলে তারা কৈলাস पर्वते की करे एलो, सूक्ष्म स्थूल वतने की करे एलो। पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं। बर्फ़ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। बाबा बोलছেন अमरनाथे যেটা शिवलिंग देखानो है बरफेर सेटा हाथ दिए बनाए ओरा। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। बाबा बोलছেন যে তোমরা যা প্রদর্শনী চিত্র বানাবে সে চিত্রে অবশ্যই একটা লাইন লেখা থাকে যে पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, कृष्ण था, अब सांवरा मनुष्य बना है। बाबा बोलছেন যে তোমরা সবাইকে বোঝাও যে যে কৃষ্ণ এত সুন্দর ছিল সে এখন সাধারণ মানুষ হয়ে গেছে। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे कहना रॉन्ग है। बाबा बोलছেন আমি कल्पे कल्पे संगम जुगेई आमी आसी, जुगे जुगे आमी आसी ना, प्रत्येक जुगे आसी ना, एजन्य जुगे जुगे बोलाटा भूल। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं, यह समझने की बातें हैं। अच्छा
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। বলছে খুব যুক্তিপূর্ণভাবে এই ঝুট খণ্ড থেকে সবাইকে বের করে সচ খণ্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্যে पुरुषार्थ करते হবে। 2 नंबर पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। बाबा बोलছেন যে মায়াবী দুনিয়ার সঙ্গ হচ্ছে কুসঙ্গ, তো এই কুসঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে এক বাবা সৎসঙ্গে করতে হবে এবং উঁচু পদ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় পড়াতে লেগে যেতে হবে। এক বাবারই মতে আমাদেরকে চলতে হবে। আজকের বরদান, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। বলছে যে সবসময় সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন থাকে তার প্রশংসা সবাই করে। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। तो বলছে যদি তুমি প্রশংসা চাও তাহলে সব সময় হাসি মুখে থাকো, প্রসন্ন থাকো। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। বলছে এই যজ্ঞের অন্তিম দৃশ্য কি হবে, যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চারা একদম হাসি খুশিতে থাকবে। तो जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजेगा। যখন সবাই একদম প্রসন্ন অবস্থায় থাকবে তবেই বাবার প্রত্যক্ষতার আওয়াজ গুঞ্জিত হবে, অর্থাৎ বিজয় का झंडा लहराएगा। তারপরে বাবার বিজয়ের পতাকা চারিদিকে উত্তোলন হবে। আজকের স্লোগান, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। বলছে নিজে ডায়মন্ড হও এবং সবাইকে ডায়মন্ড হওয়ার মেসেজ দাও, এটাই হচ্ছে আসল ডায়মন্ড জুবলি পালন করা। ওম শান্তি।